Hello kids, how are you all? Hope all of you are having a nice day. So today we are going to start with chapter number 7. Abadi learns a lesson. But as usual पहले हम क्या करेंगे? Warm up exercise. तो देखते हैं इसमें क्या है. Look at the pictures. What do you think of these children? See, this boy is troubling this girl very bad. They both are fighting over a teddy bear. Again, this is not good. What is this boy doing? Pulling the tail of a dog. Very bad. And the mother is scolding the kid. Why? सारी की सारी बुक्स कहाँ हैं? बैग से बाहर. और जो बुक्स हैं वो नीचे गिरी हुई हैं. This is also not good. So what do you think is a spoiled child? Spoiled child means जो बच्चा बात नहीं सुनता है, बिगड़ा हुआ बच्चा. ऐसा बच्चा कौन होता है? Tick. This tick mark you have to do to the correct answer. Someone who is disobedient. Disobedient कौन होता है disobedient? जो बात नहीं सुनता है. तो yes, वो एक spoiled child है. Someone who does not care for others, जो दूसरों की care नहीं करता है, वो भी एक spoiled child है. Someone who hurts others, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है. Yes, again that is a spoiled child. All the above. So this is the correct answer. So over here what you have to do? Take the correct answer. So in a way what you can do? You can take this one. Just a moment. You can take this one. Do you think some of the children in the above pictures are spoiled? Why or why not? Yes, all these children are spoiled who are harming the other child, or they are fighting with each other over here. This boy is harming this, creating problem for this puppy or a dog. Over here a disobedient child is there. So I hope kids you understood this thing. Now moving ahead to the chapter. Okay, in a dense forest there are no wicked animals. Everyone lives in harmony. So this is a story about a dense forest. Dense मतलब बहुत घना जंगल. और वहाँ पर कोई भी ऐसा एनिमल नहीं था जो एक दूसरे को तकलीफ पहुँचाता था. सब मिलजुल कर रहते थे. हार्मनी मीन्स मिलजुल कर रहना. There are flowers and butterflies, bees and snails, squirrels and rabbits. क्या क्या था वहाँ पर? Flowers थे बहुत सुंदर सुंदर, butterflies तितलियाँ थी, snails थे, squirrels गिलहरियाँ थी, rabbits and a herd of elephants. Elephants का एक पूरा झुंड था. Amadi is an elephant calf. Amadi क्या है? Elephant का हाथी का बच्चा. There are 7 or 8 calves in this herd. कितने calves हैं? कितने बच्चे हैं इस वाले herd में? A group of elephants is called herd. 6 या 7 छोटे छोटे हाथी के बच्चे हैं. One can easily tell him apart because of a white mark on his forehead. और उन सब में से अमादी कैसे डिफरेंट था? Because उसके forehead, this is the forehead. ठीक है, यहाँ पर क्या था? एक वाइट मार्क था. एलिफेंट्स विद वाइट मार्क्स ऑन द फोरहेड्स बिकम लीडर्स ऑफ द हर्ड. तो जिस एलिफेंट के भी फोरहेड पर एक वाइट मार्क होता था वो बड़े होकर लीडर बन जाते थे पूरी की पूरी हर्ड के. सो परहैप्स अमादी इज बीन लव्ड अ लिटिल मोर देन द अदर्स. सो इसीलिए अमादी को वहाँ पर सब थोड़ा ज़्यादा प्यार करते थे इन कंपैरिजन टू अदर calves. Amadi lives a safe life roaming in the jungle with his mother and the other elephants. Amadi बहुत अच्छी प्यारी सी सेफ जिंदगी जी रहा था अपने मदर के साथ और दूसरे एलिफेंट्स के साथ. Elephants roam, eat and live together. एक साथ एलिफेंट्स घूमते थे, खाते थे और अच्छे से रहते थे. When they move from one place to another, they build a natural garden. जब वो क्या करते थे? जब वो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो एक नेचुरली एक कॉर्डन, एक व्यवस्था स्थापित कर देते थे. Calves move about in the center and are followed by a female elephants. तो जो calves थे वो हमेशा बीच में रहते थे एंड उनको, और वो किसको फॉलो करते थे? हमेशा फीमेल एलिफेंट्स को. The leader of the herd leads the cordon. तो उस कॉर्डन को, उस पूरे चीज़ को कौन लीड करता था? जो लीडर होता था. द लीडर ऑफ द हर्ड इज अ टस्कर. जो लीडर होता था वो क्या होता था? हमेशा एक टस्कर होता था, लूमिंग लार्ज एंड पावरफुल.
टस्कर मीन्स अ बिग एलिफेंट, मेल एलिफेंट, ठीक है, और जो बहुत पावरफुल होता था और बड़ा होता था। एवरीवन इन द फॉरेस्ट फियर्स एंड रिस्पेक्ट हिम, सब डर कर रहते थे उस टस्कर से और उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अमादी लुक्स अप टू हिम एंड ड्रीम्स ऑफ ग्रोइंग अप टू बी अ लीडर वन डे। अमादी हमेशा को बहुत रिस्पेक्ट से देखता था और हमेशा सोचता था, सपने देखता था कि एक दिन मैं भी इनके जैसा ही बनूंगा। अमादी एंड हिज फ्रेंड्स आर अलाउड टू गो हियर एंड देयर अ लिटिल बट नॉट अफार। तो कुछ वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस थे, तो अमादी और उसके फ्रेंड्स को ये अलाउड था कि वो थोड़ी दूर तक चले जाएं, बट बहुत दूर तक नहीं। द ओल्डर एलिफेंट्स टीच द यंग एलिफेंट्स द रूल्स ऑफ द जंगल। तो जो बड़े एलिफेंट्स थे, ओल्ड थे, वो हमेशा यंग एलिफेंट्स को रूल्स बताते थे जंगल के, कि कहाँ कैसे जाना है, क्या करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू लिव इन हार्मनी। बहुत ज़रूरी था कि आप मिलजुल कर कैसे रहें। द एल्डर्स टेल्स देम अगेन एंड अगेन, बार बार एल्डर्स यही सिखाते थे। अमादी लिसन्स हाफ हार्टेडली। अमादी सुनता था पर बहुत ध्यान से नहीं। हाफ हार्टेडली मीन्स ओके ओके टाइप्स। नेवर ब्रेक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विदाउट चेकिंग इवन इफ यू आर डाइंग टू ईट द फ्रेश जूसी लीव्स, द एल्डर्स से। तो एल्डर्स क्या कहते थे, ऐसे नहीं कि बिना जांचे परखे एकदम से आप ट्री की कोई भी ब्रांच तोड़ दो। बेशक आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वॉट एवर द रीज़न, बट नेवर डू दैट। आपको फ्रेश जूसी लीव्स खानी है, बट यू हैव टू चेक देम फर्स्ट। दिस इज वॉट द ओल्ड वन सेज। जस्ट अ मोमेंट किड्स। ओके, वेट, देयर मे बी चिक्स एंड एग्स ऑफ सम बर्ड्स। क्या हो सकता है उन लीव्स पर? चिक्स हो सकते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स के बच्चे, एंड एग्स ऑफ सम बर्ड्स, या फिर एग्स हो सकते हैं बर्ड्स के। दे माइट फॉल एंड डाई। तो अगर आप एकदम से उसको लीव्स को और ब्रांचेस को शेक करोगे तो वो गिर सकते हैं और वो बच्चे मर जाएंगे। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल द बर्ड्स विल नेवर बी योर फ्रेंड्स। तो कभी भी अगर केयरफुल नहीं रहोगे तो बर्ड्स जो हैं आपके फ्रेंड्स कभी नहीं बनेंगे। नेवर ब्रेक ब्रांचेस विथ फ्लावर्स ऑन देम। कभी भी वो वाली ब्रांचेस नहीं तोड़नी है जिसमें फ्लावर्स हों। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल। एंड द एल्डर्स कंटिन्यू, अमादी लुक्स हियर एंड देयर। अमादी इधर उधर ही देखता रहता था। He wants to escape from this lecture. उसको lectures बहुत boring लगते थे और वो भाग जाना चाहता था। Flowers have nectars. Flowers में क्या होता है? रस होता है, nectar होता है। They attract bees and butterflies, who are the matchmakers of the plant world. तो मैच मेकर्स तो वही होते हैं पूरे प्लांट वर्ल्ड के। विदाउट देम देयर विल बी नो फ्लावर्स। उनके बिना फ्लावर्स पॉसिबल नहीं है। फ्रूट, सीड्स और न्यू ट्रीज, द फ्रूट्स पॉसिबल है ना सीड्स और न्यू ट्रीज, बिकॉज वही सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। एंड वॉट विल यू ईट देन। और अगर यही सब नहीं होगा तो फिर तुम सब लोग क्या खाओगे? बट अमादी डज नॉट लिसन। अमादी सुनता ही नहीं था। रिमेंबर यू आर ऑल बिग एनिमल्स, द एल्डर्स वॉर्न। तो एल्डर्स हमेशा क्या बोलते थे? हमेशा याद रखो तुम एक बड़े एनिमल हो। सो व्हेन यू सिट और लाई डाउन ऑन द ग्राउंड यू मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेल्स। तो जब भी कभी नीचे ज़मीन पर बैठते हो तो देखो कि छोटे छोटे स्नेल्स तो नहीं है, बिकॉज आप बैठोगे तो वो मर जाएंगे। सी दैट यू डोंट क्रश देम विद योर वेट। कहीं उनको दबा मत दो, उनको अपने वेट से। एज दे टेल यू व्हेन द फ्लड वाटर एंटर्स द फॉरेस्ट, बिकॉज वो स्नेल्स ही होते हैं कि जब फ्लड का पानी जंगल में घुसता है वही सबसे पहले हमें बताते हैं। चेक फॉर बेबी स्क्विरल्स इन द हॉलोज ऑफ ट्रीज व्हेन यू शेक देयर ब्रांचेस। तो वो कह रहे हैं कि जब आप पेड़ों की टहनियों को हिलाते हो तो हमेशा चेक करो कि गिलहरियों के बच्चे तो नहीं है वहां पर। टू पिक द fruits. These animals in turn will be the first one to give you news of dangers like fire. अब अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा याद रखो कि यही वो वाले एनिमल्स होते हैं कि अगर पूरे जंगल में आग लगी है तो ये सबसे पहले बताते हैं।
When you get news of good food, the elders continue, you must not eat alone. जब भी बहुत अच्छे खाने के बारे में पता चले तो हमेशा याद रखो कि अकेले नहीं खाना है. You must inform others, हमेशा दूसरों को बताओ. And if any member of the herd faces danger, everyone must rush to help. और अगर पूरे हर्ड की किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम आई है तो सबको हेल्प के लिए जाना चाहिए. रिमेंबर दैट यू फेस डेंजर इफ यू आर अलोन. हमेशा याद रखो कि अकेले रहोगे तो हमेशा डेंजर में रहोगे. सो लर्न टू लिव टुगेदर. तो एक साथ रहने की कोशिश करो. द यंग एलिफेंट्स लिसन विद रैप्ट अटेंशन. तो जो यंग एलिफेंट्स थे वो सुनते हैं बट पूरी तरह से नहीं. ओनली अमादी डज नॉट लाइक टू लिसन टू ऑल ऑफ दिस. सो जो यंग एलिफेंट्स हैं वो ठीक से सुनते हैं बट अमादी नहीं सुनता था. रैप्ट अटेंशन मीन्स विथ फुल अटेंशन. He knows one day he will become the leader of the herd. उसको पता था कि एक दिन उसको लीडर बनना है हर्ड का. He will grow into a huge elephant with big tusk. वो एक दिन बहुत बड़ा सा एलिफेंट बनेगा और उसके बहुत बड़े बड़े टस्क होंगे, दांत. Everyone in the jungle will be afraid of him. सब जंगल में उससे डरेंगे. So he doesn't bother to make friends with those small creatures at all. So उसके अंदर ये आ गया था कि नहीं ये छोटे छोटे जानवर हैं, मैं इनको अपने फ्रेंड्स नहीं बनाऊंगा. Am I fool to share my good food? वो सोचता था मैं क्या फुलिश हूँ कि मैं अच्छा फूड इनके साथ शेयर करूँ. Thanks Amadi. In fact I should eat all that good food alone, shouldn't I? तो वो क्या सोचता था, अरे ये खाना तो मुझे खुद ही खा लेना चाहिए. I have to grow up quickly, you see, I have to become the leader one day. So he always breaks the rule. तो वो कहता था कि नहीं ये खाना तो मैं खुद ही खाऊंगा, मुझे एक दिन बड़ा होना है, बहुत जल्दी बड़ा होना है और मुझे लीडर बनना है. तो वो हमेशा सारे रूल्स को ब्रेक करता था. He squirts water into the rabbit hole. वो क्या डाल देता था, पानी डाल देता था रैबिट्स के होल्स में with his trunk, अपनी ट्रंक से. He shakes the trees and फ्राइटन्स द स्क्विरल्स. वो ट्रीज को शेक करता था जिससे कि जो गिलहरियाँ थी वो डर जाती थी. ही प्लक्स द फ्लावर्स, ही ब्रेक्स ब्रांचेस एंड स्केल्स द बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स. वो क्या प्लक करता था, क्या तोड़ता था, फ्लावर्स को. क्या ब्रेक करता था, ब्रांचेस. और किसको डराता था, बटरफ्लाइज और बर्ड्स को, विच वॉज वेरी बैड. All the animals are tired of his mischief. सारे के सारे जितने भी जानवर थे वो थक चुके थे, परेशान हो चुके थे उसके इस बिहेवियर से. One day they complained to the leader of the elephant herd. Please do something. Amadi is becoming very naughty. तो एक दिन जाके उन्होंने जो उनका लीडर था हर्ड का उससे कंप्लेन की कि आप कुछ करिए, अमादी जो है बहुत नॉटी हो गया, बहुत हमें परेशान कर रहा है. The leader heard them out and realized that naughty Amadi needs to be taught a lesson. तो जब लीडर ने सुना तो उन्होंने कहा कि हाँ अब बहुत हो चुका है, अब अमादी को एक लेसन सिखाना ही पड़ेगा. That night, as always, Amadi goes to sleep next to his mother, but in the morning he gets a surprise. तो रात को as usual अमादी कहाँ गया, अमादी अपनी मदर के पास सोने के लिए गया. बट जैसे ही वो मॉर्निंग में उठा so there was a surprise waiting for him. He finds himself alone on the banks of a small pool. एक छोटा सा पूल था और उसके कॉर्नर में उसने देखा कि अरे मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, I'm all alone. He gets to his heels and searches near the pool. वो एकदम से उठा और ढूंढने लगा सबको. There is no sign of the elephant herd. कोई भी एलिफेंट आसपास नहीं था, कोई भी नहीं था. He lifts his trunk to catch the smell floating in the breeze. उसने अपनी सूंड ऐसे ऊपर उठाई और स्मेल किया ब्रीज को, हवा को. No luck there. कि मतलब पता चले कि कोई आसपास है या नहीं है. Animals have that power and especially the elephants with this trunk can smell if someone is near him. He feels frightened. एकदम से उसको डर लगा. After some time he starts crying. थोड़ी देर बाद वो रोने लगा. What will happen now? Where will I find my parents in such a huge and dense forest? अब वो सोचा अब क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं, अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मा को या पापा को कैसे ढूंढूँ इस घने जंगल में. He sighs. Just then he sights a squirrel on the neem tree and calls out. तभी उसको एक नीम की ट्री पर कौन दिखी, स्क्विरल, गिलहरी. तो उसने उसको बुलाया. Do you have any news of my herd?
मेरा जो हर्ड है या जो मेरे साथ रहते हैं उनके बारे में कुछ पता है? Don't you remember how you pulled the tails of my babies and hurt them? तो स्क्विरल ने क्या बोला, तुम्हें याद नहीं है तुमने मेरे जो बच्चे थे उनकी टेल, उनकी पूंछ को कैसे खींचा था और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी। मॉक्स द स्क्विरल, स्क्विरल ने बोला। Have you forgotten how you shook the branches and made us fall? क्या तुम भूल गए किस तरह से तुमने पूरी की पूरी शाखाएं, टहनियों को हिलाया था और हमें गिरा दिया था? Serves you right, now stay alone. तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, अब तुम अकेले रहो। The squirrel sneezes and goes away. स्क्विरल ये सब बोलकर चली गई। Amadi gets very angry. He goes further into the forest and meets a baby rabbit in the tall grass. अब अमादी को बहुत गुस्सा आ गया और वो जंगल के अंदर और अंदर चला गया और उसको कौन मिला? एक छोटा सा रैबिट का बेबी, टॉल बहुत लंबी लंबी घास में। द बेबी रैबिट वॉज प्लेइंग हॉप स्कॉच बाय हिमसेल्फ। तो वहाँ पर जो बेबी रैबिट था वो गेम्स खेल रहा था। When he saw Amadi and scurries into his burrow, जैसे उसने अमादी को देखा वो डर गया और अपने बरो के अंदर घुस गया। The mother rabbit comes out and glares at him with red angry eyes. तो मदर रैबिट ने देखा कि अरे ये क्यों अंदर आ गया। जैसे ही वो बाहर निकली उसने देखा अरे यहाँ तो अमादी है, तो उसको मदर रैबिट को बहुत गुस्सा आया और बहुत गुस्से में वो अमादी को घूरने लगी। Do you know where my parents are? Amadi asked a little timidly. तो थोड़ा आवाज़ लो करके धीरे से बोलकर अमादी ने पूछा उस रैबिट से, मदर रैबिट से, कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? No, I don't know. Wouldn't tell you even if I did, says mother rabbit sternly. एकदम stern होकर, stiff होकर मदर रैबिट ने कहा वैसे तो मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं, पर अगर पता भी होता ना मैं तुम्हें कभी नहीं बताती। Don't you remember how you poured water down our hole? क्या तुम्हें याद नहीं है किस तरह से तुमने हमारे होल में, हमारा जो घर है उसके अंदर कैसे पानी डाल दिया था अपनी टस्क से? We nearly died. हम बस मरने ही वाले थे। Now you see how it feels, serves you right. अब तुम देखो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। अमादी फील्स मिजरेबल एंड रिग्रेटफुल। अमादी को बहुत बुरा लग रहा था और वो बहुत रिग्रेट कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था कि उसने सबके साथ कितना गलत किया है। As he does down the jungle road, he meets the colorful butterflies flitting around the pink blossoms of the kanchan tree. अब वो कहाँ गया? डाउन द जंगल रोड, एक रोड सी थी जंगल में, वहाँ गया। उसको कौन मिला? कलरफुल बटरफ्लाइज, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल रंग बिरंगी तितलियाँ, फ्लिटिंग अराउंड द पिंक ब्लॉसम्स ऑफ द कंचन ट्री। कंचन ट्री में पिंक पिंक कलर के बहुत सारे फ्लावर्स थे, तो वो उसके आसपास थी। ओ बटरफ्लाइज, स्वीट बटरफ्लाइज, कैन यू टेल मी विच वे द एलिफेंट्स वेंट? अब उसने क्या बोला बहुत प्यार से कि अरे तितलियों, प्यारी प्यारी तितलियों, क्या तुम बता सकती हो कि जो एलिफेंट्स थे उनकी जो पूरी हर्ड है वो कहाँ से गई है? आस्क्ड अमादी मीकली, बहुत हल्के बहुत प्यार से अमादी ने उनसे पूछा। See how sweetly he speaks today. Wasn't it just the other day that he broke the branches and drove us away? तो उसके बाद बटरफ्लाइज ने कहा ओहो हो देखो आज ही कितने प्यार से बोल रहा है, और उस दिन उसने क्या किया था? उसने उस दिन सारी की सारी टहनियाँ तोड़ दी थी और हमें एकदम से यहाँ से भागना पड़ा था। अमादी वेट्स इन वेन फॉर द आंसर। अब वो बहुत, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, बट उसको कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। अमादीज crestfallen face makes the sparrows crackle in laughter. तो वहाँ पर स्पैरोज थी और जब उन्होंने देखा अमादी का फेस देखकर, एकदम बिल्कुल झुका हुआ फेस, प्रॉब्लमैटिक फेस देखकर वो हंसने लगी। Serves him right, the frog croaked. सभी फ्रॉग ने बोला यही होना चाहिए अमादी के साथ। From now on he will have to remain alone. अब से अमादी को अकेले रहना पड़ेगा। All the creatures who had a grudge against him start a chorus. जितने भी creatures, जितने भी वहाँ पर छोटे छोटे एनिमल्स, छोटे बड़े एनिमल्स थे जिनको प्रॉब्लम थी अमादी से, सब एक साथ बोलने लगे कि वाह वाह वाह, अब अमादी को अकेले रहना पड़ेगा। अमादी इज नॉटी, अमादी बहुत शैतान है।
बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की है उसने हम सब के लिए। अमादी इज विकेड, बहुत विकेड है। एवरीबडी हैज लेफ्ट हिम अलोन, सबने अमादी को देखो आज अकेले छोड़ दिया क्योंकि वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएटर है। अमादी स्टार्ट्स क्राइंग, अमादी अब रोने लगा। ही क्राइज हिज हार्ट आउट, वो बहुत तेज तेज रोने लगा कि बस अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। फाइनली ही गेट्स टायर्ड एंड फॉल्स asleep, वो इतना रोया कि उसको नींद आ गई और वो सो गया। सॉबिंग बिसाइड द पूल, रोता रहा, सुबकता रहा और सो गया पूल के पास। नेक्स्ट डे व्हेन ही वेक्स अप ही कांट बिलीव हिज आईज, अगले दिन जब वो उठा तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। He finds himself sleeping right in the middle of his herd. उसने देखा कि अरे सारे के सारे एलिफेंट्स, काव्स सब वहीं हैं और मैं तो बीच में सो रहा हूँ। He finds himself sleeping right in the middle of the herd next to his mother's warm belly. और कहाँ सो रहा था? बिल्कुल अपनी मदर के पास। Belly means near the stomach of his mother. He looks at the neem tree in front. सामने उसको क्या दिखता है? नीम का ट्री। Yes, the squirrel is flitting up and down the trunk. तो स्क्विरल क्या कर रही थी? उसके ट्रंक को ऊपर और उसके ट्रंक के आसपास ऊपर नीचे घूम रही थी। Was it a dream? He thinks to himself. अब वो सोचने लगा कि अरे कहीं ये कोई सपना तो नहीं था। From that day on, no one has complained about him ever again. उस दिन के बाद से किसी ने भी अमादी की कंप्लेन नहीं की। So that's all kids in this story, and now we are coming to the word meanings. Tell him apart means easily identify, जो अलग से पता चले। Cordon, cordon होती है protective wall। Looming, appearing, look up to, admire, half-heartedly, without interest, dying to eat, very eager to eat, listen with rapt attention means बिल्कुल carefully किसी भी चीज़ को सुनना। Mocks, mocks means किसी का मजाक बनाना, टीज करना। Sneers, makes a face and speaks in a way to show disrespect, जब आप किसी के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। Scurries, moves quickly with small steps, धीरे 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 छोटे छोटे steps में चलना। In vain, without any result. Crestfallen, sad and disappointed. Grudge, a strong feeling of anger or dislike. Cry one's heart out means crying a lot. Can't believe his eyes means when you are surprised, अरे ये क्या हो गया? Darken the circle of the correct option in the OMR sheet. Amadhi can be easily recognized because of a blank on his forehead. So the correct option is white mark. क्या था उसके forehead पर? White mark. When they move, they build a natural cordon. एक wall सी create कर लेते हैं। Amadhi did not like to listen to the elders. पूरी तरह से वो नहीं सुनता था, उसको बहुत बोरिंग लगता था। All the animals complained to, किसको कंप्लेन किया? लीडर ऑफ द हर्ड, जो उनके हर्ड का, उनके झुंड का जो लीडर था अमादी के। टू द लीडर of the herd. Fill in the blanks. A blank, move about in the center followed by female elephants. Who used to move about in the center? Calves. Calves छोटे होते थे तो वो center में move करते थे। Calves. Amadhi dash and dreams of growing up to be the leader. Amadhi looks up to him, to the leader. और वो खुद भी सोचता था कि मैं एक दिन लीडर बनूंगा। Looks up to him. Flowers have what? Nectar. Flowers में क्या होता है? Nectar होता है। Is that clear, kids? He does not dash to make friends. He does not bother. उसको लगता था मुझे तो एक दिन लीडर बनना है, मुझे इनको छोटे छोटे ये जो एनिमल्स और इंसेक्ट्स हैं इनको मुझे फ्रेंड्स नहीं बनाना है। The baby rabbit was playing
just a moment. Hopscotch. Say if the given statement are true or false. The young elephant listened to the elders. Yes, this is true. Amadi made friends with small creatures. No, false. He breaks off branches with nest. Yes, he used to break the branches. He does not crush snails underfoot. He used to do all that. He breaks branches with nest. Yes, he does not crush snails underfoot. He does not. No, he does. So this is false. Amadi starts crying when he does not see his family in the morning. This is true. So this completes the chapter, kids. Hope all of you enjoyed it. So have a nice day. Take care of yourself. Goodbye.